everyone, welcome to Vidyanan Online. So, in the last session, we studied about carbon and its compounds. Now, in this chapter, we are going to study about periodic classification of elements. So now, this chapter is the last chapter of chemistry class 10th, and this chapter is actually one of the easiest chapter of chemistry. So we know that there are 118 elements that are known to us, and if we want to study about those elements, तो उनको अकेले अकेले अगर हम पढ़ते हैं, उनकी physical properties, chemical properties, how they react and how they combine, it is very difficult. तो इसको solve करने के लिए classification का procedure आया. तो classify करने का क्या मतलब है कि हम elements को groups में डाल देते हैं इस तरीके से कि जो भी elements similar group में होंगे उनके properties similar होगी. तो suppose हमारे पास ये A, B, C, D करके ये 4 elements हैं एक ग्रुप में. तो अगर मैंने सी एलिमेंट के बारे में स्टडी कर लिया, सो आफ्टर स्टडिंग दैट सी एलिमेंट आई कैन गेस कि ए, बी और डी ये भी इनकी प्रॉपर्टीज भी सी के अकॉर्डिंग ही होगी, सी के सिमिलर ही होगी. दैट्स द रीजन वी वेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सो एज टू ईज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ऑफ एलिमेंट्स. सो in order to classify those elements, there were many scientists that performed their attempt. सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की थ्योरी रखी और क्यों वो फेल हुई या क्यों उनको इतना सक्सेसफुल नहीं हुई. एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का कौन सा सक्सेसफुल लॉ है जिसको अब हम फॉलो करते हैं. सो इस सेशन में हम उन अटेम्प्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट डॉब्रेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. So the first question which arises is why we need to classify the elements. तो इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को सेपरेटली स्टडी करना तो बहुत मुश्किल है. So that's the reason we need to divide them into groups such that the elements in the same group have similar chemical properties. So ये पहला क्वेश्चन बनता है कि why we need to classify the elements. Next, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अर्लियर अटेम्प्ट्स थे क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को. तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो था बाय साइंटिस्ट लेवोसियर. सो ही वाज अ साइंटिस्ट हु एक्चुअली स्टडीड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. सो बाय स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्ड है या ब्रिटल है या फिर वो मेलेबल है या डक्टाइल है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो वो इतना अच्छा मेथड नहीं था क्लासिफिकेशन करने का. उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे ही वॉज डॉब्रिनर्स. सो डॉब्रिनर वॉज द जर्मन केमिस्ट हु एक्चुअली मेड एन अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. Now the second attempt was by the scientist Newland. So he named his law as Newland's law of octaves. So octave means 8. Okay, so he told that every first element will be having the property similar to every 8th element. In that way the properties are going to repeat. Then we had third scientist Mendeleev. So Mendeleev periodic table became very famous at that time. However, it also had few anomalies because of which it was not accepted completely. Okay, so the last classification was done by Niels Bohr. So Niels Bohr actually gave us modern periodic law which we are following right now also. So he made up the modern periodic table by classifying the elements into group and period. So we are going to study about these classification one by one. So right now we are going to study about Dobriner's law of triads. So Dobriner was the first scientist जिन्होंने atomic masses के according classification किया था. So what did he say? He said that when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, तो अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रखते हो देन यू विल गेट द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिन्होंने इनको ट्राइड्स कहा था. ट्राइड्स का मतलब भी होता है 3. ओके, सो ही बेसिकली मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स which he called as triads. Now these triads are having similar properties. Okay, so this was the first point. Second point, he said that the atomic mass of the middle element, so you are actually making the group of 3 elements, say suppose it is A, B and C. So he is saying that the atomic mass of the middle element, जो ये बीच वाला एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक मास किसके इक्विवेलेंट होगा? द एवरेज ऑफ अदर 2.
So if I want to calculate the atomic mass of middle element, which is B, so atomic mass of B will be equal to the average of the atomic masses of other two elements, which is A and C. ओके, सो मैं क्या करूँगी, A और C के एटॉमिक मास को प्लस करूँगी और अपॉन 2 करूँगी. इन दैट वे आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ B. ओके, अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे 3 ट्राइड्स थे जो डॉबिनर्स ने बनाए थे. सो द फर्स्ट ट्राइड वाज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. सेकेंड वाज कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. एंड थर्ड वाज chlorine, bromine and iodine. So these were 3 trides that was made by Dobriners. तो अगर हम बात करते हैं पहले ट्राइड की, तो जो पहला ट्राइड है it belongs to alkali metal group. तो अगर हम देखते हैं लिथियम, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है 7. वेयरएज अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39. तो अगर मुझे सोडियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, सो एज पर डॉबिनर्स मैं कैसे कर सकती हूँ, 7 + 39, मतलब बाकी के जो 2 रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनको प्लस करके अपॉन 2 किया. इन दैट वे आई विल बी एबल टू गेट 23, विच विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइड की. तो सेकेंड ट्राइड जो हम मिला है वो मिला है एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप से. तो इसमें अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40, वेयरएज बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो है 137. तो अगर हमें स्ट्रोंडियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, वी विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द अदर टू. तो 40 + 137 अपॉन 2 जो कि होगा 88. ठीक है, तो इन दिस वे जो स्ट्रोंडियम होगा उसका हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया. अगर हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट. तो इसकी अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, वेयरएज आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 127. तो जो ब्रोमीन होगा उसका एटॉमिक मास कितना होगा, इट विल बी 35.5 + 127 अपॉन 2 जो कि निकल के आएगा 80. इन दैट वे ही मेड 3 ट्राइड्स. सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होने चाहिए कि ये 3 ट्राइड्स कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना का, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, सो इसको याद करने के लिए बेसिकली हम लोगों को पीरियोडिक टेबल भी याद होना चाहिए. तो पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सिखाऊंगी, तो आपको ये ट्राइड्स भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की. तो डॉबिनर से कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो इम्पॉर्टेंट है. तो पहला न्यूमेरिकल अगर हम देखें, सो इट्स सेइंग दैट गिवन बिलो आर 3 ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स. तो आपके पास 3 ग्रुप्स हैं जिनमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, और इनके आपके पास एटॉमिक मासेस भी गिवन है. तो आपको बताना है कैन यू फाइंड विच ऑफ दीज ग्रुप्स फ्रॉम डॉबिनर ट्राइड्स. तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि डॉबिनर ट्राइड्स को फॉलो करता है. तो पहली बात होती है, डॉबिनर्स ने कहा था दैट ही इज अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ग्रुप नंबर ए में जो एलिमेंट्स हैं आर दे अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. सो येस, इट इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर बी, तो यहाँ पे भी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. पर अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर सी की, सो ग्रुप नंबर सी में आप देखो तो ये स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम का कम हो गया, फिर कैल्शियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा हो गया. सो इट इज़ नॉट फॉलोइंग द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ डॉबिनर ट्राइड. तो ये तो आपका निकल गया, ये तो आंसर आपको हो ही नहीं सकता. ग्रुप नंबर सी तो आपका आंसर है ही नहीं. अब हमें चेक करना है कि क्या ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी इसका आंसर है. सो ग्रुप नंबर ए के लिए हम चेक करते हैं कि अगर हम पी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं by calculating the average of other two, वो कितना निकल के आता है. ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ P कैसे निकालेंगे, हम पहले 14 को प्लस करेंगे 74.9 से और करेंगे अपॉन 2. सो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो उसका सम आता है 88.9. सो अपॉन 2 करेंगे, इट वुड बी 44.45.
तो अगर आप देखो 44.45 इज नॉट इक्वल टू 31.0, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी नहीं है, तो ग्रुप ए इज अगेन रूल्ड आउट। तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर बी की, तो ग्रुप नंबर बी में अगर हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम विच इज SR, तो हम कैसे करेंगे, 40.1 उसको ऐड करेंगे 137.3 से, एंड फिर हम क्या करेंगे अपॉन 2। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो उसका सम आएगा 177.4, तो अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इट वुड बी 88.7। तो अगर हम देखें इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 87.6, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप नंबर बी follows the Doberer triad. Now let us see the second numerical. So here it's saying, can the following group of elements be classified as Doberer triads? So here you are having two groups. In group number A you have elements sodium, silicon and chlorine, and in group number B you have elements beryllium, magnesium and calcium. Okay, so sodium is 23, silicon is 28 and chlorine is 35.5, whereas beryllium is 9, magnesium is 24 and calcium is 40. So अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे are they arranged in the order of increasing atomic masses? So yes, they are arranged and this is also arranged. Now talking about the second statement in which we need to calculate the atomic mass of the middle element for both the groups. ओके, सो अगर हम बात करते हैं सिलिकन की, तो सिलिकन का एटॉमिक मास कितना होगा, इट वुड बी 23 प्लस 35.5 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा आपका, इट वुड बी 58.5 अपॉन 2, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 29.25। तो अगर हम देखें इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 28, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड वाले ग्रुप की, तो सेकेंड वाले ग्रुप में जो मैग्नीशियम का अगर आप एटॉमिक मास निकालोगे इट वुड बी 40 प्लस 9 अपॉन 2, जो कि होगा 49 अपॉन 2, जो कि आएगा 24.5। अगेन इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24, तो दोनों में देखो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तो देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट दोनों में फॉलो हो रही है। पर आप एक चीज देखिए, क्या सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है? क्या डॉबिनर्स ने क्लोरीन को सोडियम के साथ रखा था? नहीं ना, तो इस वजह से ये वाला जो ग्रुप है इट डजंट फॉलो द डॉबिनर ट्राइड्स, whereas अगर हम बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इट फॉलोज द डॉबिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। ओके, नाउ it is very important, what is the limitations of Dobener's classification of elements? So Dobener's ने जितने भी elements थे उनको arrange किया था in the order of increasing atomic masses, so इस तरीके से he made 3 groups which he called as triads. So now अगर हम 3 groups बनाते हैं 3 elements की, इसका मतलब है हम कितने elements को classify कर पाए हैं? Only 9 elements. So at that time around 56 elements were known, but he was able to classify only 9 elements, which is very less. Therefore, his theory of classification was not much successful. Second, he could not explain the relationship between atomic masses of elements and their chemical properties. So he told that he is arranging the elements in the order of increasing atomic masses, but he could not tell why he is arranging them in the order of increasing atomic masses and why the chemical properties of the triads are matching. He could not find the reasons for the same. That is the reason his law was not so accepted. It failed. So I hope you must have got this session very well. तो हमने डॉबिनियर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि उसका क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या था, उनकी स्टेटमेंट्स क्या थी, देन कौन कौन से 3 ट्राइड्स थे जो उन्होंने बनाए थे, देन वी स्टडीड अबाउट द न्यूमेरिकल्स आल्सो एंड आल्सो द लिमिटेशन पार्ट। सो यहाँ तक हमारा डॉबिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स कंप्लीट होता है। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि जो डॉबिनर से 3 ट्राइड्स बनाए थे उसमें जो थर्ड ट्राइड था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो बिलोंग करता है हैलोजन ग्रुप को। तो आपको पता लगाना है कि हैलोजन ग्रुप को हम हैलोजन्स क्यों कहते हैं।
इसके बारे में सोचिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए. टिल देन, do subscribe us to YouTube, do follow us on Facebook and do follow us on Instagram. Bye bye and take care of yourself.